السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام گروپ ممبرس اور فیصل صاحب آپ کو بھی محترم محمد نسیم صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فیصل صاحب اصل میں کافی عرصے سے ہوں اس گروپ کے اندر، تو اکثر کافی سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں آپ کے لیے، تو آج میں نے سوچا آپ سے کچھ سوالات کر لوں. تو پہلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ تھوڑا سا اپنا نام اور تھوڑا فیملی بیک گراؤنڈ اگر بتانا چاہیں تو بڑی مہربانی ہوگی، پھر آگے چلتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں آپ سے. نسیم بھائی، میرا نام امیر فیصل ہے اور الحمدللہ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ خدا تعالیٰ نے بہت ساؤنڈ اور اسٹرانگ دیا ہے. خدا تعالیٰ نے مالی پوزیشن بھی ہمیشہ بہت اچھی رکھی ہے، ساؤنڈ پوزیشن رکھی ہے، اور فیملی اسٹیٹس اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا دیا ہے. ہماری فیملی میں ججز، میجسٹریٹ اور فوج میں لوگ رہے ہیں. الحمدللہ خدا کا شکر ہے. شکریہ. جی فیصل صاحب بہت شکریہ. جی فیصل صاحب، آپ بیسیکلی تو ہندو تھے، پھر آپ جو ہے کنورٹ ہوئے اسلام میں، تو آپ ذرا تھوڑا یہ بتائیے گا کہ ایسی کون سی وجوہات تھی، کس بنیاد کے اوپر جو ہے آپ مسلمان ہوئے، ایسی کیا چیز تھی جو آپ کو اٹریکٹ کر گئی؟ تھوڑا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کب مسلمان ہوئے اور کس نے آپ کو مسلمان کیا، کوئی آپ کے ساتھی تھے جنہوں نے آپ کو تبلیغ کی، تھوڑی سی یہ ڈیٹیل دے دیجیے گا. محترم محمد نسیم صاحب، اگر میں شارٹیسٹ فارم میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں، ہمارا بیک گراؤنڈ بھلے ہی ہندو سے ہی، بٹ ہم لوگوں کا جو خاندانی تعلق ہے وہ آریہ سماج سے ہے. اور آریہ سماج کو اگر میں بہت ہی شارٹیسٹ وے میں ڈیفائن کرنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آریہ سماجی لوگ لا الہ الا اللہ پر پوری طرح سے یقین کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنی دنیا اور دین چلاتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ پہ پوری طرح ایمان ہے. رہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میرا بچپن سے ہی بہت ساری مسلم فیملیز میں آنا جانا تھا، اور ظاہر سی بات ہے جو میرے کلاس فیلو یا میری عمر کے لڑکے تھے ان کے یہاں آنا جانا تھا، تو ایک جگہ مجھے بہت زیادہ پیار اور دلار ملتا تھا، اور ان کی مدر بالکل مجھے اپنا بیٹا سمجھتی تھیں. جب ہم لوگ پڑھائی کرتے تھے یا ایگزام وغیرہ دینے جاتے تھے تو قرآن شریف کے ورقوں کی ہوا وہ ہم کو دیتی تھیں اور دعائیں دیتی تھیں. میرا جاننا شیعہ فیملیز میں بھی تھا، سنی فیملیز میں بھی تھا، بھلے ہی دونوں جگہ سے الگ الگ مذہب اسلام کی باتیں پتہ چلتی تھیں. تو میں ان لوگوں سے متاثر ہوا اور تھوڑی بہت مجھے معلومات ہوئی، اور یہ پتہ چلا کہ آدمی کی زندگی کا مقصد ایک عارضی مہمان کی طرح دنیا میں آنا ہے، اور اصلی زندگی موت کے بعد ہے. پھر وہاں کی باتیں بتائی گئیں کہ قبر میں اس طرح سے سوال و جواب ہوں گے، پھر جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ بتایا گیا، اور ان چیزوں سے مجھے لگا کہ ہاں آگے کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اور میں سمپلی زیادہ کچھ تحقیق نہ کیے ہوئے مسلمان ہو گیا تھا الحمدللہ. سن 2013 میں نے باقاعدہ شرعی طور پر مذہب اسلام قبول کیا، ایک آدمی کے ہاتھ پہ بیٹھ کے کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد سن 2014 میں باقاعدہ انڈین کورٹس کے تھرو میں نے رجسٹریشن کروایا، اپنا نام وغیرہ چینج کیا، اور باقاعدہ اس وقت سے امیر فیصل بن گیا. شکریہ. محترم محمد نسیم صاحب، میں ان آدمی کا نام بتا دیتا ہوں جن پہ بیٹھ کے میں نے کلمہ پڑھا تھا. ان کا نام مولانا محمد سعید صاحب تھا، اور کس جگہ وہ تھے، کون سے شہر میں تھے، یہ آپ موٹے طور پہ مان لیجئے کہ انڈیا کا جو ہمارا کیپٹل ہے دہلی، وہاں پہ ہم نے یہ بیٹھ کے سب کام کیا ہے. اور اس سے زیادہ ڈیٹیلز میں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اور بہت سارے معاملات کی وجہ سے نہیں دے پاؤں گا، اتنا سفیشینٹ ہے. بہرحال 2013 میں شرعی طور پہ میں نے کلمہ پڑھا باقاعدہ، اور مشرف باسلام ہوا الحمدللہ. جی فیصل صاحب، اچھا، ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ جو آریہ سماج ہے یہ توحید پرست ہیں، تو خیر اس میں تو ہمارا آپ کا اختلاف ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ جو انڈیا ہے وہاں پہ میرا خیال ہے اردو تو پڑھائی نہیں جاتی، تو یہ اردو جو ہے آپ نے کہاں سے سیکھی، تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا.
मोहतरम मोहम्मद नसीम साहब, मैं ये माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि ये आपकी मालूमात की कमी हो सकती है। बाकायदा मदरसों में जहाँ अरबी पढ़ाई जाती है, कायदा और सिपारा पढ़ाया जाता है, वहाँ पर भी उर्दू का इंतज़ाम है। और स्कूलों में भी बाकायदा उर्दू के पीरियड्स लगते हैं मैक्सिमम स्कूल्स में, और उर्दू सिखाई जाती है। और सब लोग जो कि तालीम लेने के इच्छुक रहते हैं वो हर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। और ये बात गलत है कि उर्दू वहाँ पढ़ाई और सिखाई नहीं जाती है। शुक्रिया। फैसल साहब जी, अच्छा हुआ आपने बता दिया। असल में मेरे पास जो नॉलेज थी वो यही थी कि अब उर्दू जो है वहाँ दम तोड़ रही है, तो सिलेबस में तो उर्दू ख़त्म ही हो गई ऑलमोस्ट। तो हो सकता है वो पढ़ा रहे हो क्योंकि आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि जब आप मुसलमान हुए तो आपने कोई मसलक चूज़ किया होगा, तो वो कौन सा मसलक था जिसमें आप मुसलमान होके आए थे? ज़रा ये भी बता दीजिएगा तो अच्छा होगा हमारे लिए। मोहतरम मोहम्मद नसीम साहब, एक्चुअली मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं कि मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि मज़हब इस्लाम में कोई मसलक भी होते हैं। हमारे घर के आसपास के 150-200 किलोमीटर जहाँ जहाँ तक आदमी आम तौर से जाता और आता है, वहाँ पर सब जगह मैं एक ही मज़हब इस्लाम देखता था। वो तो अब मैं देख के और ये जानकारी लेने के बाद कि फ़िरक़ा जात इतने सारे हैं, तो अब मैं आपको जवाब देने के काबिल हूँ कि हमारा घराना या आसपास या 100-200 किलोमीटर देवबंदी ही मसलक के लोग हैं। और क्योंकि हमें मसलकों का पता नहीं था तो हम उसको ही मज़हब इस्लाम समझते थे। और जो वो मौलाना साहब थे जिन्होंने कलमा पढ़ाया वो भी देवबंदी थे। और अधिकतर जो मेरे फ्रेंड्स थे मुसलमानों में वो भी देवबंदी थे, या ये कि वो शिया लोग भी थे। शुक्रिया। जी, बहुत बेहतर। अच्छा, आप देवबंदी थे शुरू में। मेरा नहीं ख्याल कि अब आप देवबंदी हैं। और मेरी नॉलेज में एक और भी बात थी कि शुरू में आप ने ख़त्म नबूवत के लिए भी काम किया है कुछ पाकिस्तानी दोस्तों के साथ मिलके। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि आपने किस तरह से काम किया और कैसा लगा आपको। नसीम भाई, इसके लिए मुझे थोड़ी सी डिटेल्स में जाना होगा। उसके बाद असल में मुझे एक दो लोगों ने ग्रुप में ऐड किया, और आपको ये भी जान के हैरत होगी कि मुझे मालूम ही नहीं था कि ग्रुप्स की दुनिया होती क्या है। क्योंकि हम लोग पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई में रहे, या अपनी फिर सर्विसेज में कह लीजिए या दुकानदारी कह लीजिए, हमारा माशाल्लाह जवाहरात का काम है। और साथ में सिल्वर ऑर्नामेंट्स वगैरह भी थोड़ा बहुत हो रहता है। तो उसके बाद जब ये पता चला, फिर देवबंदियों से ये पता चला कि बहुत सारे फ़िरक़े 70-72 हैं। और जब ये जानकारी मिली कि एक आदमी मुसलमान तो हो जाता है ये सोच कर के उसकी आखिरत सुधर जाएगी, आखिरत सुधर जाएगी, जन्नत मिल जाएगी, बट ये पता चला कि एक मुसलमान नहीं बल्कि कम से कम 72 तरह के मुसलमान हैं। और 72 में से सिर्फ एक ही फ़िरक़ा या एक ही सेक्ट्स ऑफ पीपल है जो जन्नत में जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हुई कि यार, क्या मुसलमान होने के बाद भी हम मुसलमान नहीं हुए। उसके बाद मैंने जस्तजू की, तलाश की। किस्सा मुख्तसर ये कि देवबंदियों के बाद हमने बरेलवियों से मालूमात की। बरेलवियों के बाद हम अहले हदीस लोगों के राब्ते में आए। और अहले हदीस लोगों के राब्ते में आने के बाद सबसे पहले मेरी मुलाकात, या कह लीजिए पाकिस्तान के एक ग्रुप जिसके के इकबाल सल्फ़ी साहब वो होते हैं मेन एडमिन वगैरह, उनसे मैं थोड़े टाइम के लिए उनके ग्रुप में किया। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं सवालात करता हूँ, तो मैंने यजीद के रिगार्डिंग सवाल कर दिए थे कि यजीद को जो लोग सही कहते हैं किस बेस पे कहते हैं। प्लस अगर आप ये लोग ये कहते हैं कि यजीद को जानकारी नहीं थी, तो क्योंकि वो चीफ सुप्रीम कमांडर कह लीजिए या बादशाह कह लीजिए उस वक्त का, तो उसने अपने उन फौजों को क्या सज़ा दी जिन्होंने कत्ल हुसैन को अंजाम दिया था। बट इस सवाल का जवाब देने के बजाय उन्होंने धमकी दी कि यजीद पे अब अगर मेरा कोई सवाल गया तो वो मुझे रिमूव कर देंगे। मैंने उनसे कहा कि आप रिमूव बेशक कर दें, बट मुझे जवाब दे दें। अल्टीमेटली किस्सा मुख्तसर ये कि उन्होंने उस वक्त मुझे रिमूव कर दिया था। उसके बाद बातचीत आगे चलती रही। और मैं इस बात को शॉर्ट कर देता हूँ कि सऊदी अरेबिया के एक शेख अख्तर साहब के नाम के आलिम हैं, और वो भी अपना ग्रुप चलाते हैं। मुझे किसी ने वहाँ पे ऐड कराया, और काफ़ी दिनों तक मैं उनके राब्ते में रहा। और सलाम दुआ मेरी अच्छी खासी रही, और मैं सवाल जवाब उनसे करता था। वो मेरे से बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश था। तो उसके बाद ये हुआ कि उनसे मेरा राब्ता मुस्तकिल चल रहा था। अब रही बात इसकी, शायद आपको तकाजा हो गया ख़त्म नबूवत वाली बात का, कि
उस वक्त उन्होंने मुझे कुछ नंबर दिए थे जिसमें मोहतरम आमिर नज़ीर साहब वगैरह का नंबर था और लोगों के नंबर थे, काफ़ी लोगों के, कि आप इन लोगों से रब्ता रखें और आपको दीन को समझने और सीखने में आसानी रहेगी। और उससे पहले ये भी हो चुका था, असल में मुझे डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ कि हमने फिर शिया लोगों से भी बातचीत की, और शिया लोगों के बाद हमें अचानक ये पता चला कि कोई अहमदीस और कादियानी लोग भी होते हैं। तो मैंने एक दो कादियानियों से या अहमदीस से रब्ता कायम किया, और उसके बाद शेख अख्तर साहब को फ़िक्र लाहक हुई और उन्होंने स्पेशल तौर पे आबिर नज़ीर साहब को मेरा तारुफ़ कराया कि ये शख्स कादियानियों के संपर्क में पता नहीं किस तरह से आ गया और इसको गाइडेंस की ज़रूरत है। और इस तरह से मैं आमिर नज़ीर साहब और ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आ पाया। शुक्रिया जी। मोहतरम मोहम्मद नसीम साहब, असल में मैंने काफ़ी उन लोगों के साथ काम किया, और शुरुआत में जो मुझे मालूमात दी गई थी तो मिर्ज़ा जी की बुक्स के वो वाली एक दो लाइनें येलो लाइन दिखाकर पेश की गई थी कि जिससे बहुत ही गलत तासुर जाता है, मेरा ही क्या और भी आदमियों का। और जाहिर सी बात है कि जो ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन हैं, वो ये चाहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाऊं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब के, अहमदियत के, अहमदीस के। और इत्तेफ़ाक की बात आप सुनिए कि जिस तरह से वन साइडेड सब कुछ दिखाया गया, तो मुझे बहुत ही अजीब व गरीब फीलिंग भी हुई। और फिर ये भी सच बात है कि कुछ इसमें कैसे बात करूं आपसे कि जब काफ़ी लोग इकट्ठे होकर एक ही बात को दिमाग में डालते हैं या ये चाहते हैं, फिर उन लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई कि मैं क्लैरिफिकेशन दूं, मैं क्लियर करूं मैटर। और एक दिन सब पूरी दुनिया गवाह है उसकी कि ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे होकर ये कहा कि स्टेटमेंट अभी चाहिए चाहिए। तो मैंने स्टेटमेंट दिए जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब और अहमदियत के बहुत खिलाफ थे। ये बात तो यहाँ तक हुई। उसके बाद असल में जो मेन वजह बनी है और बेसिक कॉज है इन सब चीज़ों का, मुझे अहमदी जमात की तरफ से, जो कि क़ादियान में है, क़ादियान सेंटर इंडिया का मान लीजिए आप, और एक तरह से ये पैदाइश की जगह भी है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब की, और उनकी ख़बर भी क़ादियान में ही बनी हुई है। मुझे अहमदी जमात की तरफ से प्रपोज़ल आया कि मैं जमात क़ादियान विज़िट करूं। अच्छा, आप जानते हैं मेरी मजाक की भी आदत है, और मैं कहने लगा भाई TA DA चाहिए, तो खैर बाकायदा अहमदी जमात की तरफ से उसका इंतज़ाम किया गया, ट्रेन टिकट्स वगैरह अरेंज किए गए। बट किसी भी वजह से वो प्रोग्राम बिल्कुल आखिर में आके एक दो दिन पहले कैंसिल करना पड़ा अहमदी जमात को। अब उसकी क्या वजूहत थी, उसमें लोग अलग अलग तरीके की अलग अलग बातें बताते हैं। शुक्रिया। तो अब आपका क्या नज़रिया है या क्या ख़यालात हैं कादियानियत के लिए, ये ज़रा बताएं। ये तो आपने नहीं बताया। मोहतरम मोहम्मद नसीम साहब, देखिए, फिर मैंने काफ़ी स्टडी की, और जो उसकी स्टडी की बेसिक वजह थी वो आपके किसी शायद अगले सवाल में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। एक्चुअली में जहाँ तक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब की ताल्लुक़ है, तो मैं बेशक उनको मुजद्दिद मान सकता हूँ, मानता हूँ, और मैंने ऐलान भी किया है। और मुजद्दिद मीन्स रिफॉर्मर। और सच में ही उन्होंने बहुत सारी बातों पे इस तरह की बातें की हैं कि उसे रिफॉर्म्स कहा जा सकता है। और कुरान शरीफ की कुछ बातों की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया है, जो कि फिर मैंने मुसलमानों से काफ़ी मालूमात की, तो वो उसे सिर्फ इजमा बता सके बट कुरान शरीफ से प्रूव नहीं कर सके। इस तरह की बातें हुई। मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब की इज़्ज़त करता हूँ जैसे कि मैं और सभी अकाबरीन की इज़्ज़त करता हूँ, बट मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब को नबी नहीं मानता हूँ। शुक्रिया। ठीक है फैसल साहब, आपने अपना नज़रिया दे दिया। दूसरा, ये मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि आप अक्सर अगेंस्ट द इस्लाम क्वेश्चन करते हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्या आप तहकीक कर रहे हैं या कि आप बज़न हैं मज़हब इस्लाम से? मोस्टली आप मज़हब इस्लाम के अगेंस्ट ही सवाल करते हैं, या ऐसा भी लगता है कि आप हिंदुज़म में वापस चले गए हैं? तो ज़रा इस पे भी रोशनी डालिएगा कि क्या ऐसा है या मेरी ऑब्ज़र्वेशन जो है वो गलत है। मोहतरम मोहम्मद नसीम साहब, इसका बिल्कुल क्लियर आंसर अगर मैं दूं तो वो ये है मोहतरम, और मैंने एक दो बार कहा भी है बट कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर मैंने अपना नज़रिया या अपने काम करने का तरीका ही बदल दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी घर का बेटा, जाहिर सी बात है कि उसको चश्मा चिराग कहा जाता है, और उसको नेक्स्ट जनरेशन कहा जाता है, और उसी से उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। किसी भी परिवार के लड़का
इतना बड़ा कदम ले कि अपने धर्म के ख़िलाफ़ जाकर, अपनी सोसाइटी के ख़िलाफ़ जाकर, अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ जाकर या अपने ख़ानदान के अगेंस्ट जाकर दूसरे मज़हब में चला जाए, और उस मज़हब में जाने के बाद अधिकतर लोग एक दूसरे के देखा देखी कहने के उसे काफिर काफिर कहना शुरू कर दें, उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाएं और उसको मुसलमान मानने के लिए तैयार ना हो, जैसे उनकी इजारादारी है मज़हब इस्लाम पर। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए, जो भी मैं मज़हब इस्लाम पे आज की तारीख में सवालात उठाता हूँ, मैं एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों पे उठाता हूँ, और ये मैं जब तक उठाता रहूँगा जब तक या तो उन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो जाए, या वो ज़िंदगी में मेरे सवालों के जवाब देने के काबिल ना हो जाएं, या ये कह लीजिए कि गैर मुस्लिम के सवालात क्या क्या हो सकते हैं, उन्हें जवाब देने के काबिल नहीं हैं वो लोग। और मैं ओपन चैलेंज करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि अगर इस काबिल हैं तो आएँ और सवालों के जवाब दें। जी फैसल साहब, असल में मुस्लिम मेंबर्स जो हैं वो जवाब तो देते हैं, लेकिन गैर मज़हब जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते, तो वो तो बात और है, और शायद आप भी नहीं होते। लेकिन अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि आपने ख़त्म नबूवत के साथियों को जब छोड़ दिया तो उसकी क्या वजह बनी? ऐसी क्या बात थी कि आप उनसे दूर हो गए? फिर आपने बड़े सख्त स्टेटमेंट्स दिए उनके अगेंस्ट, इस पे थोड़ी रोशनी डालें। जी मोहतरम मोहम्मद नसीब साहब, ये आपने बहुत बेसिक क्वेश्चन किया और ये जवाब सबके सामने जाना भी चाहिए। असल में हुआ ये कि जब मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स दे दिए, हालांकि ये देखिए आप अहमदीस का कि उन्होंने उस वक्त भी उन सब चीज़ों से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने अहमदी जमात की तरफ से बाकायदा तौर पर मुझको इनविटेशन दिया और रेलवे टिकट्स वगैरह भी बुक कराए उन्हीं लोगों ने। और ये अलग बात है कि कुछ वजूहात से वो चीज़ उन्हीं की तरफ से फिर कैंसिल हो गई। तो उसमें हुआ क्या है, बहुत छोटी सी बात हुई थी, बट उस बात को बहुत बड़ी करके बना दिया गया। मैंने ग्रुप में ये कहा, मैं हर बात ग्रुप में शेयर करता था कि भाई मुझे आज दोपहर को ये जानकारी मिल गई थी कि अहमदी जमात ने या कादियान ने मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, और रात को मैंने ये बात ग्रुप में डिक्लेयर की। तो रद्द कादियानियत के सो कॉल्ड सरबराह कहलाने वाले आमिर नज़ीर साहब इस बात को लेकर इतना बैठ गए और उन्होंने इतना हाईलाइट किया, उनके मुंह से जैसे कोई खुदा ताला फूलों की माला या फूल झड़वाने लगा। उन्होंने ये कहा कि जी अगर रात को ये पता चला है कि अहमदी जमात ग्रुप में ऐलान हो रहा है कि अहमदी जमात ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और अमीर फैसल साहब को दोपहर ही पता चल गया था इस बात का कि वहाँ से प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो ये जब तक पॉसिबल ही नहीं है कि अमीर फैसल किसी खुफिया एजेंसी, या ये कि खुफिया एजेंसियों में भी बड़ी एजेंसीज जैसे कि रॉ वगैरह होती हैं इंडिया की, उससे वाबस्तगी ना हो। और उन्होंने रीज़न ये बताया कि मेन रीज़न इसका ये है कि अहमदी जमात की ख़बर को निकलवाना, वो भी उनके ऑफिस से, बहुत ही मुश्किल तरीन काम है, और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में जो बहुत बड़े अहदे पर फायज हों सिर्फ वो निकलवा सकते हैं। तो उन्होंने वो वाला बेस बनाकर के मुझे दोपहर को जानकारी कैसे मिल गई थी, मुझे रॉ का एजेंट करार दे दिया। हकीकत में तो नसीम भाई शुरुआत से ही मेरा मुतालबा है कि आमिर नज़ीर साहब को ये क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि आखिर उन्होंने मुझे इंटेलिजेंस एजेंसीज का बंदा किन ग्राउंड्स पे घोषित कर दिया, या ये कि अनाउंस कर दिया। उनके पास क्या जवाब है, ये सवाल वैसे उनसे होने चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि दोपहर से शाम तक के फासले को उन्होंने ये बना दिया, और जब मेरी नज़रिया एकदम जैसे फिल्मों में दिखा देते हैं, कोई मिरर टूटता हुआ या अलग से शेड बना के मेरी ज़मीन और आसमान हिल गए। मैंने कहा यार, ये आदमी जिसको इतना बड़ा स्कॉलर या इतना बड़ा माना जाता है, रद्द कादियानियत का सरबरा, इतना छोटे दिमाग के मालिक हैं, ये इतना ड्राई माइंड रखते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन अगर मैंने शेयर कर दी, नॉर्मली कि दोपहर मुझे मालूमात हो गई थी और मैं रात को बता रहा हूँ ग्रुप में, तो इस बेस पे इन्होंने सीधा रॉ का एजेंट बता दिया। मेरे दिमाग ने, आप यकीन कीजिए, इस तरह का लर्जा खाया कि जैसे कह देते हैं ना कि ज़मीन और आसमान हिल गया। मैंने कहा यार, मैं किन लोगों के साथ इतना दिन काम करता रहा। और उसके बाद असल में फिर गालियों का सिलसिला शुरू हो गया। एक आदमी वकील बघियाने वाले का नाम था, साथ था इन लोगों की, और एक पता नहीं क्या नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहरहाल उनका थोड़े दिन पहले इंतकाल हो गया है। उन लोगों ने इतनी ज़बरदस्त गालियाँ देने शुरू की मुझे और मेरे परिवार को, जो कि एक आम सभ्य इंसान सुन भी नहीं सकता है।
اور سننے کو تیار نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے ہمارے پورے خاندان کو گالیاں دی، اور جب میں نے اس پہ چھوٹا موٹا لوگوں نے احتجاج شروع کیا اور لوگوں نے اس بات کی بہت سخت نندا کی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اس پر عامر نذیر صاحب نے تمغہ یہ لگا دیا کہ وہ دونوں گالی باز ان کے دائیں اور بائیں بازو ہیں. تب مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی. دائیں اور بائیں بازو ہیں تو پھر میں نے ان سے دل اتنا کھٹا کیا. میں نے کہا یہ جاہل ترین لوگ ہیں، اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا بندہ تو ایسے بتا دیا انہوں نے میرے سے پوچھا تک بھی نہیں کہ ان سب چیزوں کی وجوہات کیا ہے. آپ کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ دوپہر کو پتہ چل گیا تھا، یہ شام تک ایسی بات ہوئی. سمپلی یہ میرے سے پوچھ لیتے، سمپلی میں بتا دیتا. بہت سمپل جواب تھا. اور نسیم بھائی میں یہ بتانا ضرور سمجھوں گا، اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ان سب باتوں کے باوجود جب ان پہ لوگوں کا پریشر بنا، اور عامر نذیر صاحب پہ بھی، کہ آپ گالی بازوں کو دونوں بازو کیسے بتا رہے ہیں، تو لوگوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں چینجنگ کی. اور انہوں نے زیادہ ہی مشاورتی الگ سے کمیٹی چلاتے ہیں، 2 4 6 ممبر اس میں رہتے ہیں. وہاں پہ جا کے مجھے یقین ہے، کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں، وہاں پہ مشورہ چلا ہوگا کہ ڈیمیج کنٹرول کس طرح کیا جائے. تو ان لوگوں نے یہ بات رکھی کہ کیونکہ امیر فیصل امہات المومنین کی گستاخی کرتا ہے اور خلیفاؤں کی گستاخی کرتا ہے، اس لیے اس کو اور اس کے پریوار کو گالیاں دی جا رہی ہیں. تو میں آج علمی سوال ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ شیعوں کی بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں میں جو خلیفاؤں کو صحیح نہیں مانتی، امہات المومنین ان کی سب سے زیادہ جو چہتی ہیں ان کو صحیح نہیں مانتی. تو اگر مجھے آپ شیعہ عقیدے کے ان معاملات پہ بھی مان لیں کہ کچھ معاملات میں شیعہ عقیدے کو صحیح سمجھتا ہوں، تو میں کیا غلط ہوں؟ یا ان گراؤنڈز پہ پورے شیعوں کو گالیاں دے سکتے ہیں، یا ان کے پریواروں کو، یا یہ امیر فیصل کو؟ یہ ان لوگوں کو پوچھنے کا سوال ہے. عامر نذیر صاحب کو میں ضرور پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم آف پیور ڈسکشن گروپ سے، کہ جب اس گالی باز کو، میں معذرت کے ساتھ گالی باز کہہ رہا ہوں صرف تعارف کرانے کے لیے کیونکہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جب اس شخص کا انتقال ہوا تو ان لوگوں کے لیے ڈوبنے کا مقام ہے، شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. ان ختم نبوت کے مجاہدین کو، یا ان لوگوں کے سربراہ کہلانے والے عامر نذیر صاحب محترم کو، کیونکہ ریسپیکٹ اپنی جگہ، کہ ان لوگوں کو معلومات ہی نہیں تھی کہ وہ شخص انتقال کر چکا ہے، اور سب سے پہلے میں نے ان کو معلومات دی کہ وہ شخص انتقال کر گیا ہے. ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی. اور آپ یہ دیکھیے کہ کیا امیر فیصل کی عزت ہے انٹرنلی طور پہ مجاہدین میں، یا ان لوگوں کی؟ کیونکہ ان لوگوں تک اطلاع نہ پہنچنا کہ ان کا ایک بازو کا انتقال ہو گیا ہے، اور میرے تک پہنچنا، اور میرے سے اس فیملی کے لوگوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کے اکساوے میں آ کر، ان لوگوں کی غلط سنگت میں آ کر اس شخص نے گالیاں دینا شروع کر دی تھی، اور معافی ان لوگوں نے چاہی، تو میرا دماغ بھی ایک دم پلٹا. حالانکہ شروعات میں جو میرا اسٹیٹمنٹ نکلا، ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی تپا ہوا ہوتا ہے کسی سے کچھ نہ کچھ غلط بول دیتا ہے. بہرحال اس کے بعد ہم نے باقاعدہ آڈیوز دیں کہ ہمیں بہت دکھ ہے اس باتوں کا. تو انہوں نے ان آڈیوز کو نظر انداز کر کے یہ کہنے لگے، لو جی واہ ویلا مچا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. بہرحال مجھے جانکاری یہ ملی ہے کہ اس شخص کا انتقال سے پہلے کافی کچھ دماغ بھی معاف العقل ہو گیا تھا، اور وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے تھے. اور اس کے بعد میں آج یہ جانکاری بھی شیئر کرتا ہوں. عامر نذیر صاحب اور ان کا ٹولہ یہ بات سماعت فرما لیں کہ ان لوگوں نے پھر ان کے خاندان کے لوگوں سے کانٹیکٹ شروع کیا، اور اپنے سے کافی پریشرائزڈ کیا ان لوگوں نے. یہ میں معلومات انہیں اپنی طرف سے دے رہا ہوں اب، جبکہ سوچتے ہوں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیسے اس کافر کو، اس امیت اگروال کو، اس امیر فیصل کو پتہ چل گیا اور ان کو نہیں بتایا گیا. اور اس پریوار کو انہوں نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ دھمکیاں بھی دیں، تھریٹس بھی کی، اور اس طرح کی باتیں کی کہ غلط ہوا ہے کہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے آدمی کو پتہ چل گیا اور ہمیں نہیں. تو میں صرف یہ اس لیے باتیں کھول رہا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ انٹرنلی طور پر لوگ امیر فیصل کو اچھا مانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، یا ان لوگوں کو. صرف اس لیے میں باتیں کھول رہا ہوں کہ یہ لوگ اچھی طرح سے سوچیں سمجھیں، اگر خدا انہیں عقل اور شعور دے. میں آج اس پلیٹ فارم سے یہ بھی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ دوپہر کو مجھے معلوم چل گیا تھا، ارے بھائی جاہل لوگوں، ڈرائی مائنڈ کے لوگوں، اگر ایک احمدی جماعت جو کہ پوری دنیا میں چل رہی ہے اس نے بلایا ہے اور اس کا کسی بھی وجہ سے کینسلیشن ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی آدمی مامور بھی کر رکھا ہوگا ہمارے ساتھ جانے کے لیے، ہمیں دعوت دینے کے لیے، ہمیں ہر ایک چیز کی انفارمیشنز دینے کے لیے، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ آج ٹکٹ بک ہو گئے، آج ہمیں چلنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ دوپہر میں ہی ان شخص کا اعلان ہوا کہ بھئی کسی وجوہات سے یہ پروگرام کینسل ہو گیا ہے. جب انہوں نے مجھے بتایا کہ کینسل ہو گیا ہے، جو بھی باتیں انہوں نے تفصیل سے بتائیں بہرحال، اور وہ آج بھی الحمدللہ ہمارے گروپ میں ہیں، اور ایک ایڈمن ہیں افضال صاحب،
उन्होंने मुझे दोपहर में इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा, बात आदमी अपने कामों में मसरूफ़ भी रहता है, रात में जब ग्रुप में मैं गया तो मैंने ये बातें बता दी। तो मैंने क्या गलत किया अगर ये कहा कि अहमदी जमात से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई। बट इन लोगों का इतना वावेला मचा देना कि जी ये अहमदी जमात से इन्फॉर्मेशन निकालने का मतलब तो रॉ का एजेंट है। तो मुझे फिर जुस्तजू हो गई थी नसीम भाई कि यार जब एक जमात के निज़ाम की इतनी बड़ी तारीफ की जा रही है, तो फिर मैंने दोबारा से स्टडी करना शुरू किया मज़हब इसको, अहमदी जमात को और अहमदीज़ लोगों को। ये मेरी वजह बनी दोबारा इन लोगों पे समझने की, और मैं जहनी तौर पर ख़त्म नबूवत के लोगों के ख़िलाफ़ होता चला गया और इनको 95% जाहिल लोगों को मैं मुखातिब करता चला गया, और मैं मानने लगा कि इनसे थोड़ी दूरी ही अच्छी है। शुक्रिया। जी फैसल साहब, आपने बड़ी डिटेल में बता दिया। और ये इंटेलिजेंस वाला जो सवाल था वो मैंने आपसे करना था, खैर आपने सब कुछ बता दिया। आप इतनी इन्फॉर्मेशंस जो बता रहे हैं आपके पास आ रही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है फिर लोगों का शक तो जाएगा इसके ऊपर। तो लोग अपने समझने के लिए हो सकता है बोलते हों, और जो जिन लोगों ने गालियाँ दी हों आपको, हो सकता है वो उस टाइम गुस्से में हो तो आपको गालियाँ दी हों आपको, तो गुस्से में ऐसा हो जाता है, तो दरगुजर करना चाहिए। अच्छा वैसे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो फैज़ल साहब, मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल है। आप काफ़ी अरसे से इस्लाम को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो काफ़ी सख्त सवालात भी आप उठाते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़। तो आप ज़रा ये बताइएगा कि इस्लाम की हक़ानियत को समझे हैं या कि अभी भी आप तहकीक पे ही हैं? मोहतरम मोहम्मद नसीम साहब, मैं तो दिली तौर से माफ़ कर चुका हूँ उन लोगों को। हमारी फैमिली माफ़ कर चुकी है, क्योंकि सारे लड़ाई झगड़े दुनिया के तक ही हैं। और जब एक आदमी की रूह ही परवास कर गई, इंतकाल फरमा गई, हमने उस वक्त भी दुआएं दी थी। हम आज भी दुआएं देते हैं कि खुदा ताला उनकी वहाँ की मंजिलें आसान करें। और जो भी मरने के बाद होता है, चाहे वो कब्र की मंजिल कहलाती हो, चाहे वो आलम अरबा की बात हो, चाहे जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट हो, कि खुदा ताला उनकी भी और हमारी गलतियों को माफ़ करे, दरगुजर करे, और उन्हें भी जन्नत के आला दर्जों में जगह दे। वो अब हमारे नज़दीक कोई मैटर नहीं है मोहतरम। बट हमें शिकायत ये होती है आमिर नज़ीर साहब जैसे लोगों से, कि ये पूछे बिना कि दोपहर को मुझे कैसे पता चल गई, जो मैंने ऊपर की ऑडियो में क्लैरिफिकेशन दे दी है, उन्होंने सीधा सीधा रॉ का एजेंट बना दिया मोहतरम। और जाते जाते एक सवाल और मेरे जहन में आया, अगर आप बताना चाहें तो उसके बाद चाहे तो आप ग्रुप ओपन कर दीजिएगा। एक ये कि आप कादियानी जो जमात है उनके बारे में क्या समझते हैं, क्या नज़रिया है आपका, उनका इंतज़ामी मामलात, इन सब के बारे में। और दूसरा ये कि आप शिया जो फ़िरका है हमारा, उसके बहुत करीब हैं, तो इमाम गायब के बारे में आप अक्सर सवाल बहुत करते हैं, तो आपका क्या नज़रिया है या आपका क्या ख़्याल है, या ये कह लीजिए कि आपके पास क्या नॉलेज है, वो अगर आप शेयर करना चाहें। मोहतरम मोहम्मद नसीम साहब, देखिए जितनी मैंने स्टडी की है, और जो शिया और सुन्नियों के बुनियादी इख्तलाफात हैं, यानी कि शुरू के 3 खलीफाओं को लेकर और हज़रत आयशा जी को लेकर, उन सब मामलात पे मैंने जितनी तहकीक की है, जो शिया नज़रिया रखते हैं, मैं उस नज़रिए का पूरी तरह से तायद करता हूँ। और आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख़ में मेरा अक़ीदा वही है कि जो कि शियायत का है। हालांकि मैं शियायत का अक़ीदा नहीं कहता, मैं इन सब चीज़ों को कुरान शरीफ और हदीसों के बेस पे प्रूव भी कर सकता हूँ। कुरान शरीफ में ओपन इस तरह की बातें हैं और हदीसों में है। बहरहाल मेरी स्टडी यही कहती है कि इस मामले में शिया सही हैं। बट जो इमाम गायब वाला कॉन्सेप्ट है वो मेरी समझ से बाहर है, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता हूँ। और मैं ये पॉसिबिलिटी मान ही नहीं सकता हूँ कि 1400 साल से एक आदमी ज़िंदा भी है, उसकी एज आज कितनी हो गई, क्या हो गया, दिस एंड दैट। और इस पर मेरे बहुत सारे सवालात हैं शिया लोगों से, जब कभी वो जवाब देंगे, मुतमईन करना चाहेंगे तो कर देंगे। रही बात अहमदी जमात के रिगार्डिंग, असल में देखिए हम लोग एक तरह से दुकानदार लोग हैं, ऐसा ही हमारा माइंड होता है और हम हर एक चीज़ को इसी तरह से समझते हैं।
مرزا غلام احمد قادیانی साहब के मेरे काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, हम जंबा ग्रुप से भी हमारी बातचीत हुई और हमारे फिर बहुत वास्ट डिस्कशंस एक अलग जगह पे बैठकर ये चले कि जंबा ग्रुप लोगों का ये कहना है कि अहमदी जमात का तरीक़ा वो बता के नहीं गए थे, बल्कि एक कमेटी का बना के गए थे 10-12-20 आदमियों की। खैर इन शॉर्ट ये बात है कि जो निज़ाम इनका चला आ रहा है एक ही फैमिली पे, तो इस पे मेरे बहुत सारे सवालात हैं कि क्या 125-150 साल से इतना कोई तकवे वाला, इतना मजहबी वाला या इतना ज़्यादा शरीफ और क्या कहना चाहिए पाकीज़ा फैमिली पैदा नहीं हुई अहमदी जमात में कि वो खिलाफत को रिप्लेस कर सकती, और एक ही ख़ानदान की इजारादारी चली आ रही है। और इन चीज़ों पे मेरे बहुत ज़्यादा सवालात हैं। बहरहाल शुक्रिया। देखिए मोहतरम मोहम्मद नसीम साहब, जब आदमी बात करने बैठे तो साफ़ सुथरी बात करे। आज इतनी ज़्यादा तहकीक़ात के बाद, 70-72 फ़िरक़ों की स्टडी करने के बाद, और आज की तारीख़ में जबकि हम ईसाई या मसीही लोगों से भी रब्ता कर चुके हैं और वो हमारे ग्रुप में बातचीत कर रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि जब गैर मुस्लिम हैं वो अपने तरीक़े के सवाल करते हैं, और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि कुरान शरीफ में जो बहुत सारी बातें हैं वो पहले से बाइबल में मौजूद हैं। उन सब चीज़ों के बाद मेरे ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत सारे सवालात पुट अप हो गए हैं दिमाग में, और मैं उन पे तहकीक़ात कर रहा हूँ, जिस पे मैं बेसिकली बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे सवालों की जो सारी की सारी केंद्र बिंदु या सेंट्रल पॉइंट है, वो अब अल्लाह को रब्बुल आलमीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहने पर है। और इन दो चीज़ों पर जो लोगों के एतराज़ हैं उन पे मैं डीपली नज़र रखूँगा और मैं इस चीज़ों की तहकीक़ात करूँगा। और मैं नहीं मानता हूँ कि अगर किसी भी धर्म से आदमी मुसलमान हो गया है, बन गया है, तो उसे तहकीक़ात के रास्ते बंद कर लेने चाहिए, बल्कि उसे आगे की भी तहकीक करनी चाहिए। ये बात सही है कि आज की तारीख़ में अमीर फैसल बाकायदा रजिस्टर्ड तौर पर मुसलमान हैं, और दिल से आप मुसलमान कह सकते हैं, बट मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। और आज मैं इस गलत फहमी को दूर करने के लिए कि मैं मुसलमान हूँ या क्या नहीं हूँ, हालांकि आप डिमांड नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है कि ग्रुप्स की दुनिया में अपने फ़ोटो भी कोई शेयर नहीं करता, बट मैं आपको अपने 1 या 2 आई कार्ड इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि लोगों की गलत फहमी, जो सही नज़रिया रखने वाले हैं, दूर हो सके, और जो बेईमान किस्म के लोग हैं या इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, उनका तो खैर अल्लाह ही मालिक है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया, और आपने अपने आईडी कार्ड्स भी जो है वो शो कर दिए, लेकिन वो रॉ वाला कार्ड आपने जो है ना वो नहीं भेजा। चले खैर, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह कभी बात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मोहतरम मोहम्मद नसीम साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह कि आपने हमारे जैसे एक बदनाम बंदे के लिए टाइम निकाला। बट मेरा पहले भी यही मुतालबा था और आज भी यही मुतालबा है कि चलिए, मैंने तो आज बिना किसी के मांगे, बिना आपके मांगे, हालांकि आप इसकी डिमांड कर सकते थे अगर चाहते, मैंने किसी के भी बिना डिमांड किए अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 कार्ड्स पेश कर दिए हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिजनेसमैन लोग हैं, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। ये प्रूव करना कि आमिर फैसल को रॉ एजेंट प्रूव करना, या ये कि उसको हिंदू प्रूव करना, ये मोहतरम आमिर नज़ीर साहब की ज़िम्मेदारी बनती है कि अब वो एक अच्छे अखलाकियात का मुजाहरा करते हुए या तो इस बात का सबूत लेकर आएँ कि आमिर फैसल रॉ का एजेंट है, इस बात का सबूत लेकर आएँ कि आमिर फैसल हिंदू है, या फिर अपनी बातों से रुजू कर लें। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है। खुदा ताला करेगा वो अपनी आकबत संवारने की तैयारी करें, और गलत फहमियाँ फैलाना या गलत फहमियों में रहना, अगर वो इसको मतलब सही ट्रैक पे आ जाएंगे तो ये उनके लिए भला होगा, और उनके लिए हम नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह फॉर योर प्रोवाइडिंग टाइम। शुक्रिया।